नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले पंचसखा साहित्यर अन्यतम विशिष्ट कवि जगन्नाथ दास एवं तांकर रचना संपर्क रे आज तांकर अन्यतम रचना गुड़िक बाबद आलोचना करिबा एवं से गुड़िक भितरे आसे तुला भिणा। मूलतः तुला भिणा होउची एक तत्व ग्रंथ क्षुद्र शिव पार्वती आगरे जो गूढ़ ज्ञान प्रकाश करिथिले ताहा एई क्षुद्र पुस्तिकाटिर विषय। तुला को भिणिले तुला परिष्कार हालुका और कर्म उपयोगी हुए। तत्वरूपी तुला को ए ग्रंथरे भिणा हेइथिबारु एहार नाम तुला भिणा हेला। कवि कहउचंती सुनग हैमवती जेमा तते कहिबा तुला भिणा। तुला को भिणंती जे सन से रूपे करी बाब खाण। जगतर उत्पत्ति संबंध रे शिवा बा पार्वती पचारुछंती शिवंकु एवं शिव उत्तर दे कहउचंती महाशून्य जे ज्योति रूप ज्योतिरु जात ठूल रूप ठूलरु अर्ध मात्रा कला मात्रारु ओंकार जन्मिला। ओंकार ब्रह्म एजगत शुण पार्वती देई चित्त। अनाकार जे ज्योति रूप सेठारे नाही रूप रेख। धूम्रवर्णर प्राय दिशे अंधकारटी से प्रकाशे। ब्रह्मांड अंधकार होई ज्योति रूपरे थिला रही। सेठारु ओंकार जन्मिला। ओंकारु साकार जे हेला। साकारु होइला मकार। मकारु जन्मी लाराकार। अंधकारटी गुप्त हेला। ओंकारु ब्रह्म प्रकाशिला। एमंते होइला दिवस दिवसु जगत प्रकाश। एहाकु पुनी गद्यरे टीका करी बुझाउछंती। सुन पार्वती अंधकार जे कुहुक वर्ण ज्योति वर्ण धूम्र जे अंधकार होइथिला से बिंदु को ओंकार कही ओ स्थूल रूप कही। से ओंकार शब्दु सकार शब्द हेला। सकार जे शक्ति से अर्धमात्रा से मकार शब्द हेला। ए रूपे अंधकार जाई दिवस होइला। तापरे महामंत्र तत्व नाम तत्व राम कृष्ण राधा प्रभृति नाम तत्व भागवत महाभारत रामायण हरिवंश प्रभृति भेद ब्रह्म ज्ञान शरीर तत्व प्रभृति बहुत विषय एई क्षुद्र पुस्तिकाटी रे जगन्नाथ दास लेखिछंती। तेबे भागवत द्वादश स्कंदर भेद एहीपरि कहउछंती महाशून्यरु शून्य जात शून्यरु प्रणव संभूत। प्रणव पवन को कही पवनु जल संभवई। जल पवनु जात हेला संसारे खेल लगाइला। जल पवन ज्ञान कही देहरे कही न बुझाई। परम पुरुषटी जेहि सुख बोलिण ताकू कही। जीवटी परीक्षित हेला सकल ज्ञानटी पुछिला। जीव परम कुपुछई जीवे परम ज्ञान कही। परम नारदटी जान जीव वसुदेव प्रमाण। नंदमुनिटी जहा कही परम पुरुषटी सेही। निमिराजाटी हेला जीव ए जीव परमंक भाव। परम कृष्ण बोली जान जीवटी उद्धव प्रमाण। जदु राजाटी जीव होई परम अवधूत कही। शुक पुरुष टी परम सनका दिटी जीव जान
ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବ ଆତ୍ମା କହି ପରମ ଧନୀ କବलाई। 12 ସ୍କନ୍ଧ ପଦ ଅର୍ଥ ଜୀବ ପରମ ଜାଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ପରମ ସର୍ବଠାରେ ପୁରୀ ଅଛଇ ପରାପରେ। ସଂସାର ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ଜାଣ ପରମ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରମାଣ। ଜଳପବନ ଏ ଶରୀର ସର୍ଜିଲା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଯେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ପଢ଼ିବା ସକଳ ବାହ୍ୟରେ ଗଣିବା। ସେହିପରି ରାମାୟଣ ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ଅକ୍ଷର ବେନି କହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଟି ଅଟେ ସେହି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରମ ପୁରୁଷ ସୀତା ଯେ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ। ସୁତଟି ସୁଗ୍ରୀବକୁ କହି ଦେବଗଣଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ଏ ପଞ୍ଚ ସେନାପତି ପୁଣ ପଞ୍ଚମନଟି ଏ ପ୍ରମାଣ। 25 ପ୍ରକୃତିଏ ହୋଇ 25 ଯୂଥପତି ସେହି। ରାଗଟି ରାବଣ ଅସୁର ଇନ୍ଦ୍ରିଟି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୀର। କୁବୁଦ୍ଧି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଣ ପାପ ଭାରାଟି ପୁତ୍ରଗଣ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଯେ ବେନି ହୋଇ ସୁକ ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ। ଏତେକ ରାବଣର ସୈନ୍ୟ ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ ଦେଇ ମନ। ପବନ ହନୁମାନ କହି ଲଙ୍କାର ଶରୀରକୁ ଦହି। ଜାମ୍ବବ ସୁଷେଣ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଆଁ ଚୈତନ୍ୟ ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ କାଳ ଯହୁଁ ହେଲା ରାଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲା। ରାଗ ତମରେ ସତ ବୁଡ଼ି ଲଙ୍କା ଶରୀରେ ଗଲା ପଡ଼ି। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତ୍ରିକୁଟ ଠାରେ କ୍ଷୟ ହେଲେ। ପ୍ରଳୟ କାଳର ଏ କଥା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ଚେତା। ସେହିପରି ମହାଭାରତ ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମନକୁ କହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାପ ପ୍ରକୃତି ତାର ସୈନ୍ୟ। ସତ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିବ लाई ଶୂନ୍ୟ ସୈନ୍ୟଟି ତାର କହି। ପ୍ରଳୟ କାଳ ତହୁଁ ହୁଏ ତ୍ରିକୁଟ ଠାରେ ଗଲେ କ୍ଷୟେ। ପ୍ରଳୟ କାଳ ଯେହୁଁ ହେଲା ରାଗରେ ସତ ବୁଡ଼ିଗଲା। କଣ୍ଠ ଘଣ୍ଟିକା ଯେହୁ ପୁଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଯେ ସେ ପ୍ରମାଣ। ସ୍ତମ୍ଭର ଦୁଇ ଦିଗେ ସୈନ୍ୟ କପେ କରନ୍ତି ଘୋର ରଣ। କାମ ସଙ୍ଗତେ ରାଜା ଯାଇ କପେ ଯୁଝନ୍ତି ପରି ଘାଇ। ତମ ସଙ୍ଗତେ କ୍ରୋଧ ପୁଣ ଯୁଝନ୍ତେ ପୃଥ୍ୱୀ କମ୍ପମାନ। ଜୀବ ପରମ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ବରସିଲେ। ସୁବୁଦ୍ଧି କୁବୁଦ୍ଧି ଯୁଝନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ବରସନ୍ତି। ଶୋକ ଶାନ୍ତିଟି ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରନ୍ତି ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି। ରାଜଗୁଣରେ ରାଜ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ରଣେ ପଶି। ଜୀବ ଆତ୍ମାଟି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଓଙ୍କାର ଆତ୍ମା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ। ଅର୍ଜୁନ ସର ଯେ ବିନ୍ଧଇ ସେହି ଠାବକୁ ମନ ଦେଇ। ପରମ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ଜାଣ କପେ ଯୁଝଇ ଘନ ଘନ। ରାସସ ବଦ ରାଧା ଜାଣ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାଟି ସେ ପ୍ରମାଣ। ତାଠାରୁ କାଳ ଚକ୍ର ଜାତ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ନିପାତ। ବ୍ୟାସ ଯେ ସରୋବର ଜାଣ ଚକ୍ଷୁ ବଲିଣ ତାବକ୍ଷାଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟି ମନ ଜାଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୁଚଇ ପ୍ରମାଣ। ପବନ ଭୀମ ବୋଲାଇଲା ଶବଦେ ଗଦା ବୁଲାଇଲା। ଚକ୍ଷୁରେ ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲା ଗଦା ବାଜନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏ ରୂପେ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି କୋପ ଭରେ। ହାରିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଜିଣିଲେ ଧର୍ମରତ ନୁଜା। ବ୍ରହ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀନ ହୋଇ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁଣ ସହି। ଗଦ୍ୟରେ ପୁଣି ଏହି କଥାକୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଗୁଣଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତମ ଗୁଣଟି ଭୀମ, ରଜଗୁଣଟି ଅର୍ଜୁନ, ସୁବୁଦ୍ଧି ସହଦେବ, ଉଦାସୀ ଗୁଣଟି ନକୁଳ, ରଥଟି ଶରୀର, ପରମଟି କୃଷ୍ଣ,
राम शब्दटी चक्र, मनटी दुर्योधन, कुबुद्धिटी शकुनी, प्रकृतिगण अनेशत भाई, द्रोण गुरुटी अर्धमात्रा, एथि उपरे जो बिंदु से भीष्म, क्रोधटी दुशासन, अहंकारटी कृपाचार्य, रागटी कर्ण, चिया चैतन्य जयद्रथ, भूरिश्रवाटी ओंकार, रा अक्षरटी संजय, अर्धमात्राटी धृतराष्ट्र। एही क्रमरे से तुणा भिणा बाबदरे आलोचना करिसंती। सेहीपरि तांकर अन्य एक रचना होउची अर्थ कोइली। तेबे एई अर्थ कोइली नामक जो क्षुद्र ग्रंथटी जगन्नाथ दासଙ୍କ नामरे मिलुची ताहा हेउची मार्कंड दासଙ୍କର केशव कोइलीर व्याख्या। एवं एई कोइली रे मुख्यतः 40 जो मार्कंड दासଙ୍କର जो आख्यायिका धर्मी लोकप्रिय ग्रंथ को से तात्विक रूप प्रदान करिसंती। से कहउछंती जे कोइली केशव जे मथुरा को गला, मार्कंड दासଙ୍କର केशव कोइली प्रथम धाड़ी रे कहा बोले गला पुत्र बाहुडी न, कहा बोले गला पुत्र बाहुडी न इलालो। जगन्नाथ दासଙ୍କର व्याख्या होची अर्जुन उवाच, अर्जुन बोइले तुम्भे सुन महाबाहु, पुच्छिबी कथाए प्रभु मते आज्ञा हेउ। केशव कोइली नाथ कहा कुजे कही, एहा मते श्रीहरि प्रसन्ने देव कही। सेठू संवाद शैली रे भगवान तार अर्थटी को कहिबा पई जाय कहउचंती, भगवान उवाच, प्रार्थर वचने जे बोलंती भगवान, उत्तम कथाए पार्थ पचारिलु पुन। कोइली बलिण पार्थ जीवकुटी कही, सेही जीव मुहि जान सर्वत्र छई। आपे आसीथिला जीव आपे चली गला, सेही पुत्र गोटी आउ बाहुडी नइला। एही पुत्र गोटी जहु बाहुडी नइला, मथुरा स्वरूप पिंड पड़ीण रहिला। तेबे एई पुस्तक रे कोइलीर नियम अनुसार जो 34 पदर व्याख्या जगन्नाथ दास करिसंती, यार भाषा मुख्यतः ग्रंथर पद टीका जगन्नाथ दासଙ୍କର पूर्वरु आउ कोनोसी कवि करिथिबार जणा जाए नाही। ओडिया ग्रंथर ओडिया टीका हिसाब रे अर्थ कोइली प्रथम टीका एवं ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास हेउछंती प्रथम टीकाकार। सेहीपरि तांकर आउ एक रचना होउची दारु ब्रह्म गीता। एई ग्रंथटी 3 अध्याय विशिष्ट ग्रंथ। श्रीकृष्णंकर देहत्याग परे से किपरि भावरे दारु ब्रह्म रूपरे नीलकंदर रे अवस्थान करिवे से विषय को कवि सुक परीक्षित संवाद छड़े अत्यंत सरल तथा प्रांजल भावरे वर्णना करिसंती एई दारु ब्रह्म गीता ग्रंथरे। एथिरे भागवत रचनार आदर्श प्रतिफलित। एहा नवाक्षरी वृत्तरे रचित। एहार प्रथम विचार द्वितीय अध्याय रे कृष्णंकर पिंड दहन समय रे दैववाणी सुनी पिंड को समुद्र रे पकाई पांडव मानंकर स्वराज्य प्रत्यावर्तन और शेष तथा तृतीय अध्याय रे कृष्णंकर नीलगिरी प्रवेश वर्णित हेइछि। एथिरे श्रीक्षेत्र श्रेष्ठत्व संपर्क रे कुहा जाइछि एही परी, पृथ्वीर सारस्वत सेही सेथकु आन सम नाही, आपणा बाम ताकू देई आपणे अछंती भी आई, नाम श्री पुरुषोत्तम सर्वक्षेत्रु से उत्तम, दक्षिण समुद्र उत्तर नाम ताहार स्वर्ग द्वार, नील सुंदर नामे वन अछई सुन हेरा जन। कली जुगरे प्राणी माने पापग्रस्त हेले
एही पुण्य क्षेत्र ही सेमानंकर सकल पाप को विमोचन करिब बोली कवि निजर मत व्यक्त करिसंती। एही ग्रंथरे पुरुषोत्तम क्षेत्र को कवि नित्य गोलकपुर और जगन्नाथं को दारु ब्रह्म रूपे परिकल्पना करिसंती। एथिरे तत्व व्यतीत स्थाने स्थाने काव्यिक चित्र मध्य रहिछि। जगन्नाथ दासंकर आउ एक ग्रंथ हेउछि गुप्त भागवत 24 अध्याय विशिष्ट। एही ग्रंथ एक तात्विक ग्रंथ। एथिरे शुक परीक्षितंकर उक्ति प्रत्युक्ति बा प्रश्न आउ उत्तर संवाद शैली रे रचित शुकदेव परीक्षितंक मनरे सृष्टि हेउथिबा केतेक संशय दूर करिबा पई केतेक तत्व प्रकाश सहित ब्रह्मज्ञान संपर्क रे वर्णना करिसंती। यथार्थरे भागवतर केतेक गुप्त तथ्य एथिरे रहिथिबारु एहार नाम गुप्त भागवत रखा जाइछि बोली आलोचक माने कहंती। एहा नवाक्षरी वृत्तरे रचित। ग्रंथर आरंभ रे कवि गणनाथं को वंदना करी तांकरी अपार कृपारु भागवत रचना करिबारे समर्थ हेबा प्रसंग उल्लेख करिसंती। एहा परे एही ग्रंथरे 24 एकादशी महात्म्य, व्यासदेव शुकदेवंकर जन्म कथन, पाप विधि विधान, चंद्र सूर्य जन्म कथन, कर्दम कश्यप ऋषिंकर जन्म कथन, श्रीराधांकर जन्म, चंद्र सूर्यंकर महिमा और शेषरे राम नाम तत्वसार आदिर वर्णना बेस तात्विक शैली रे रचित हेइछि। एई गुप्त भागवत ग्रंथर 20 अध्याय रे वर्णित हेइथिबा श्रीराधांकर जन्म प्रसंग रे एक मनोरम आख्यान प्रदान करा जिबा सहित तांकर भागवतरे वर्णित वृंदावती ही श्रीराधा बोली से उल्लेख करिसंती। कविंकर भाषा रे राधा कृष्ण जे बोली नाम धइले न देखई जम, से लक्ष्मी कमला बोलाई विमला नाम तांको होई, अपरे आउ नाम ख्याति सेही जे सीता वृंदावती। एही ग्रंथर शेष अध्याय रे आत्मार वैशिष्ट संपर्क रे उल्लेख करबाकू जाई जगन्नाथ दास प्रकाश करुछंती। ए जीव मिथ्या बोली जान, आत्माटी केवल प्रधान, आत्मा अटई करता, आत्माटी अटई देवता, आत्मा हेले पिंडु अंतर, के काहा कुटुंब सोदर। तेबे एई गुप्त भागवत ग्रंथटीर भाषा खूब सरल एवं यह अनेक समय रे श्रोतांक मनरे भागवतर भ्रम जेपरी सृष्टि करि थाए, सेपरी तांकर आउ एक क्षुद्र ग्रंथ होउची रास क्रीड़ा। एथिरे दशम स्कंद भागवतर गोपलीलार 30, 31, 32, 33 और 34 अध्याय अर्थात 30, 31, 32, 33, 34 एहाकू मिसाई एक स्वतंत्र ग्रंथ रूपे रचना करा जाइछि। एथिरे उपरोक्त 5 गोटी अध्याय को रास पंचाध्यायी बा रास क्रीड़ा नाम रे नामित करा जाइछि। एहार वर्णना अतीब मनोहर। शरत कालर एक मनोरम सायाह्न जमुना कूलस्थ कुंजवन रास क्रीडार अवतारणा करा जाइछि। श्रीकृष्णंकर मधुर मुरली वादन 16,000 गोपांगनांकु भावविहल और चलचंचल कर देइछि। फलरे सेमाने निजर आत्मीय स्वजन, घर द्वार और परिवार
ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯମୁନା କୂଳରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ କେକଳେ ବାଳ କବସାଇ ଦୁଧ ପିଆଏ ଗୀତ ଗାଇ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିଲେ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ଡାକଇ ତାର ନାମ ଘେନି ବାଳକ ପକାଇଲା ତଳେ ଧାଇଁଲା ମଦ ନବୀ କଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶୟନ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ କେ ଗୋପୀ ଚରଣ ଚାପଇ ମୁରଲି ତାର ନାମ ଧରି ଡାକଇ ଆସ ବେଗ କରି ପତିଚରଣ ଥୋଇ ତଳେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା କାମ ଭଳେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମ୍ନୀ ଗୋପୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକାନ୍ତରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏହା ଜାଣି ତା ମନରେ ଗର୍ବଜାତ ହେଇଛି। ଗର୍ବ-ଗଞ୍ଜନକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବତୀର ମନୋଭାବ ଜାଣି ତାକୁ ହଠାତ୍ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକିନୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘୋର ବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛି। ତାର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଭାବବିନୋଦିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋପୀଗଣ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ 16,000 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ପରିଣତ କରି ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ସତ୍ତା ଯେପରି ବିଳସିତ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଦର୍ଶନାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ। ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ମତରେ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଅନୁପମ ସୃଷ୍ଟି। ସେହିପରି ଏହି ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତି ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ତୁତିମୂଳକ ରଚନା। ପୂର୍ବରୁ ବଳରାମ ଦାସ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତିର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ସହିତ ଏହାର ବଳରାମ ଦାସ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ସହିତ ଏହାର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ମାନେ କଥନିକା କଥାବସ୍ତୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟର ଘଟିଛି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତର 3 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ 9 ଗୋଟି ପଦର ସମାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତାର ପରିଚୟ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କବିଙ୍କର ଅନୁବାଦର ଶୈଳୀ ଏହିପରି, ତାର ନମୁନା ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଗ୍ରେ ବ୍ୟାଧ ବରଧୃତ ସ୍ୱର ପୃଷ୍ଠତ ଜାଲ୍ଲୋମାଳ ପାର୍ଶ୍ୱେ ବହ୍ନିର୍ ଦହତି ବିପିନଂ ସନ୍ନିଧୌ ଶ୍ୱାନ ମେଳ ଏଣି ଗର୍ଭାଦଳସ ଗମନା ବାଳକା କ୍ରୋଡ଼ ଲୀଳା ସ୍ତିନାଯୁକ୍ତ ବିଳପତି ମୃଗୀ କିଂ କରୋମି କୋ ଜାମି। ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦରେ ଏହିପରି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଘଟଣା ଦୈବ ଜଗର ବ୍ୟାଧ ସର ଧରି ଜଗେ ଆଗର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ ବନ ଦହେ ଅନଳ ପାଖେ ମିଳି ଅଛଇ ଶ୍ୱାନ ମେଳ ଏଣି ଗର୍ଭବତୀ ତେଣୁ ବିସ୍ତାରେ ଅଳସରେ ଗତି ଅଛେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ମୃଗ ଶିଶୁ ପଙ୍କ୍ତି ଜହିଁ ସ୍ନେହ ବଢ଼ଇ ପ୍ରାଣୁ ଅତି
किस करिब केउ दिगे जीवी केउ उपाय करिबी एमंत बलिण चिंताकूल होई कला रदन। ग्रंथर शेषरे कवि देशवासी भक्तवृंद को उपदेश देइछंती मृगुणी भली भगवान को एकांतरे निजर समस्त अस्मिता को समर्पी दे प्रार्थना कले एई विपद संकुल भवसागर उद्धार पाई पारिबो। तेबे यार भाषा अति सरल और साबलील। सेहीपरि जगन्नाथ दासंक रचित आउ एक क्षुद्र ग्रंथ होउछि गजस्तुति। यह मध्य एक जनप्रिय रचना। एथिरे भगवान को विपद अवस्थारे स्मरण करी गज किपरि रक्षा पाइछि ताहा अति सरल भाषा रे वर्णना करा जाइछि। यार विषय वस्तु मध्य संवाद शैली रे अर्थात प्रश्न उत्तर शैली रे रचित। उद्धव और श्रीकृष्णंकर कथोपकथन होछि यार आधार। तेबे समालोचक माने कहंती यह एक गाथा कविता परि मने हुए। यह गुज्जरी राग बा भागवत बाणी रे रचित होइछि। तार कथाणी बा उपाख्यान भागटी होउछि एही परि एकदा वैशाख एकादश तिथि रे सरजू नदी तटरे और दक्षिण समुद्र कूलरे जुआर उठिबा फलरे मत्स्य कच्छप मगरादि जलचर प्राणी सबू अनेक दूर पर्यंत स्थल भाग को चली आसीछंती। सेमानंक मध्यरु विकर्मा नामक एक कुंभीर जल ठारू बहु दूरवर्ती स्थल भागरे पड़ी रही। से जीवन विकल रे होउछि छटपट। एही समय रे कुंभक नामक एक मत्त हस्ती सांगरे तार शावक मानंकु धरी सेई पथ देई आसुथिबार देखी कुंभीर कपटरे ता सहित मैत्र बसिबाकू कहिछि। कुंभीरर एपरी स्नेहबोला कथारे बिचरा गज ता माया न बुझी पारी ता पाखकू जीवाकू बाहरिछि। ता संगरे जाउथिबा शावक हस्तीगण ताकू एथिरु निवृत्त हेबाकू कहिछंती। से किंतु सेमानंकर कथा न सुनी एहा अधम कार्य हेबो बोली कही कुंभीर पाखकू जाइछि। गज ता सुंढरे कुंभीर को नहीं गभीर जल मध्य को जाइछि। एही समय रे कुंभीर जल मध्य को लंफ प्रदान करिछि। परे गजर पाद को दंतरे धरी भक्षण निमंते उद्यम करिछि। ए प्रकार व्यवहार रे गभीर मर्माहत होइछि बिचरा गजटिए। एते गभीर जलरे तार बा शक्ति केते उद्धार हेबा पई एपरी निस्सहाय अवस्थारे प्राण विकल रे से भगवान को प्रार्थना करुछि। एही परी रखहे देवकी नंदन रखहे मधुसूदन रखहे देव दई त्यारी कुंभीर पाटी रुनिस्तारी तुम्भे तो न रखिब जेबे निश्चय गजा मल्ला तेबे। यहाँ परे आसीछि द्वितीय प्रसंग। प्रसंगटी होछि एही समय रे द्वारकापति श्रीकृष्ण प्राणप्रिया पत्नी लक्ष्मी सहित पशा खेल मग्न थिले। लक्ष्मी देवींकर पंचुआती दान पड़ी। लक्ष्मी सार चलाइबा परे प्रभु चक्रधर खेल हारी जिबा एबे सुनिश्चित। एही समय रे से गजर विकल प्रार्थना सुनी पारी रखिलु बोली कही सुदर्शन चक्र को आज्ञा देइछंती कुंभीर को छेदन करिबा पई। आज्ञा अनुजाई चक्र कुंभीर को छेदन करिछि एवं गज उद्धार पाइछि। चक्र प्रभुंकर आदेश पालन करी फेरी आसी गज उद्धारण कथा कहिछि। मात्र लक्ष्मी एथिरे विश्वास करिनांती। तांकर धारणा
खेल निश्चित भाव में पराजय रक्षा पाइबा पई से एपरी एक कौशलर आश्रय नहीं कौशलर आश्रय नहीं कविंकर वर्णना होछि एमिति मु गप स्त्री जे नुहई भंडीब मुरली बजाई गप नगरे जात होई भंडीब नाना भट कही तेमंत प्राय मते कही मिछे भंडुछ नरहरी एमिति भाव में तांकर वर्णना रही। तेबे एहा परे उभय लक्ष्मी नारायण गरुड़ पिठीरे बसी घटनास्थल रे आसी पहुंची सेमाने समुद्रर जल रक्तवर्ण धारण करिथिबा ओ कुंभीर दुई खंड होई पड़िथिबार दृश्य देखिछंती। घटनार सत्यासत्य परीक्षा करिबा परे लक्ष्मी लज्जाबोध करिछंती। तेणु यही गज स्तुति मृगुणी स्तुति उभय ग्रंथ स्तुतिमूलक एवं उभय आख्यान मध्य देई लोकमानंकु ऐकांतिक भक्ति रे भगवानंक पाखरे निजकु समर्पण करिदेबा पई कवि जेपरी उद्बोधित करिछंती। जगन्नाथ दासंकर किछि भजन मध्य रहिछि एवं अद्यावधि लोकमानंकर तुंडरे ताहा गान करा जाए। से मध्यरु भूला मन भूलु काहींकी एकाक्षर प्रश्न और एकाक्षर उत्तर आदि भजन गुड़िक कविंकर वैष्णवीय तात्विक दर्शनादिर सुंदर पद संयोजनारे बेस आकर्षणीय होइछि। एथिरे अनेक अर्थरे व्यवहृत केतेक पदर गूढ़ार्थ रूप प्रकाशित होइछि यथा भ्रुलता मध्यरे अना त्रिकुटे उड़ुछि बाना हजिले परम सुना आउ पाइकी ओंकार मध्यरे देख उलटी रहिछि हंस कहे जगन्नाथ दास अनुसरित। तेबे ए जेते ग्रंथ बा ए जेते रचना विशेष भावरे एगुड़िक सबू होउछि कविंकर बा पंचसखा जुगर कवि मानकर प्रसंगरे एगुड़िक सेमाने अत्यंत प्रतीकात्मक शैली रे उपस्थापन करिसंती एवं उपस्थापन करिबा कारणरू बिना गुरु रे तार जटिल गुह्यार्थ आमे पाइबा संभव नुहे। तेबे एहा बाहरे मध्य जगन्नाथ दासंकर किछि गद्य रचना रहिछि जेपरी कहूथिले जे तुड़ा भिणारे स्थल विशेष रे कवि निजकु व्याख्या करिबा पई गद्यर व्यवहार करिसंती एवं एई तुड़ा भिणारे 10 बा 13 स्थान रे गद्य अछि। ए गद्य लेखा ग्रंथर प्राय 1/4 बा 1/4 हेबो। वर्तमान मिलुथिबा गद्य रचना गुड़िक भितर जगन्नाथ दासंकर तुड़ा भिणार गद्य लेखा अत्यंत प्राचीन लेखा। तेबे यार निर्दिष्ट काल जना जाउथिबा गद्य भितरे यह चैनीकर चकड़ा परे द्वितीय प्राचीन गद्य रचना बोली आलोचक माने कहंती। एई दुई ग्रंथ पूर्वरु ओडिया गद्य ग्रंथ मिलुथिले सेगुड़िकर समय निर्दिष्ट भावरे जना पड़ू नाही एवं एई गद्यांश भितरे हुए स्थान रे होए किए स्थान रे के शबदरु स्थान रे शबदु प्रभृति प्राचीन प्रयोग देखा जाए। दिशे स्थान रे दिशई डाकू थाए स्थान रे डाकई एहीपरि क्रियार व्यवहार देखा जाए। वाक्य गुड़िक छोट छोट जटिल वाक्यर व्यवहार नहीं कहिले चले। भाषा सरल मार्जित और अलंकार शून्य। गद्यांशर भाषा और लेखार ढंगर जदि आमे देखिबा ताले से गुड़िक होछि एमिति सुनग पार्वती फटका भितरे ब्रह्म प्रकाश होई एही से इंद्र नीलमणि रूप जल स्वरूप होई भासुथाई बदरी फल प्राय होई आरक्त वर्ण दिशई अरुण प्राय दिशई से फटका भितरे थाई राम नाम डाकु थाई शून्य शबदरे मन देई थाई सेठारु काया बढ़िला से जो ब्रह्म रूप थिला से ज्योति हेला बिंदु रूप होइला ओंकार राकार ठूल हेला से बिंदुरु अर्धमात्रा हेला
बिंदुरु अर्धमात्रा कला से फटका भितरे सर्जिला तेणु से बिंब बेनी फाड़ हेला राम बोली ओंकार शब्द होइला। तेणु एहीपरि भावरे जदि आमे देखिबा जगन्नाथ दास पुराणर अनुवादक हिसाब रे ओडिशा रे प्रथम जगन्नाथ दासंकर बहु रचना रे बहु स्थल रे मूल संस्कृत भागवतर आक्षरिक अनुवाद नथिले मध्य यह मुख्य भावरे अनुवाद ग्रंथ बा ताकू आमे जो प्रेरणारू से लिखिछंती अनुसरण रे ग्रहण करा जाई पारिबो। तेबे सारला दासंकर महाभारत बलरामंकर रामायण जेपरी मौलिक जगन्नाथ दासंकर भागवत सेपरी नुहे। तेबे आज एतिकी थाउ परवर्ती समय रे आमे पंचसखार अन्यान्य कवि मानक प्रसंग रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।